मटेरियली सॉफ्ट है, इतना सॉफ्ट है शायद जैसे आप हल्का सा कलर यूज़ करेंगे या हाथ पे लगाएंगे। सब जगह भटकता रहा, पर मैं वो कहूँ ये वो हालत भी ऐसे देखना पसंद करता हूँ और इस तरह का वर्क मैं बनाना चाहता हूँ। तो ये लगता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हम किस तरह का वर्क करना चाहते हैं। Sujit Rai. I am Sujit Rai from Kolkata. I am working more than 20 years. So I am feeling very comfortable here in IIT New Delhi. I have observed that children of our time are being victim of strange world of entertainment, and these entertainment needed to be enhanced further, and at the end of it there is fatigue. So I want the children should do some creative work so that they can put some order in themselves. Thank you. Hi, I'm Raj Sahani and I'm coming for this camp, 2 days camp. Sorry, आवाज़ एक बार फिर से ले सकते हैं आप? आवाज़ कम है? नहीं, बस सही बोलिए। हाय, आई एम राज सहानी। मैं इस कैंप में आया हूँ जो कि अनूप दादा ने इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। इसमें हम लोग मिल के कुछ इस कैंप के अलावा भी कुछ करना चाहते हैं। तो बेसिकली मैं 8-10 साल हो गए हैं पेंटिंग करते हुए। तो मैं पेंटिंग के थ्रू अपने थेरेपी पे काम कर रहा होता हूँ। जो मेरे फीलिंग्स हैं, जो मेरे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, सोसाइटी है, पॉलिटिकल थिंग्स हैं, तो उसको मैं रिसर्च करके फिर मैं पेंट करता हूँ। तो जिसमें मेरे फॉर्म में एनिमल्स और बर्ड्स ये सब आते हैं। तो ये बेसिकली ये सिंबलाइज़ करते हैं ह्यूमन इमोशंस को, जो कि एंशिएंट टाइम से ही ये सब चीज़ें आ रहा है। तो उसको मैं यूज़ करके अपने तरीके से सिंबल बना करके दिखाने की कोशिश करता हूँ, और मैं अपने चीज़ों को क्लियर करता हूँ, अपने आप को क्लियर करता हूँ। तो दिस इज़ माई पेंटिंग। There is a snake, and snake is my fear. It's a symbolism of fear, and also already have the symbol of snake is a protection of your wealth. So lots of things in there, lots of narrative, lots of my nostalgia. So I paint through my therapy. I paint my fear. Thank you. हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मैं डॉक्टर ज्ञानेश मिश्रा बेंगलोर से हूँ। आई एम ए पेंटर, पॉटर एंड स्कल्प्टर, एंड आई रियली थैंकफुल टू दिस IITD Delhi for inviting me for this camp learning program. It's an amazing workshop, different artists with different technique and different motives. And here my painting, I am trying to give the message to the younger generation: please save this majestic animal, tiger. Save the tiger is my concept. Same time, save the nature. And I am trying to say that 50 years back, a small little story about this tiger. 50 years back, we have more than 30,000 to 40,000 tigers in India. Today we have only 1,200 and 300 tigers. It's now our duty and responsibility to save them. And as such, as an artist, I really enjoy exploring my colors and expressing the tiger as a majestic animal and enjoying this camp. Thank you very much.
myself, Professor Manjula Chaturvedi from Varanasi. I came here for the workshop, for the painters workshop. We are 10 eminent artists from all over India and around 20-25 students. You all are working here together. These students are from BTech mainly, and they are learning arts to enhance their aesthetic vision and to develop their personality. As we all know that art enriches our mind, body and overall our life, and we become a perfect man, because life without art is nothing. It's very important. So here in this workshop I tried to paint landscape, because these days our earth is demanding to save itself. So this is our moral responsibility to promote nature by painting landscapes, creating love for the nature in the other's mind or in the minds of the beholder or of audience. So in this camp we are enjoying. Many artists all over India have come here. We are interacting. The purpose of these artists workshop is to meet the people, to know about them, how they live, how we interact, because we all are in one. मैं डॉक्टर रेमी यादव, मैं यहाँ गाज़ियाबाद से आई हूँ। हम लोग सभी एक साथ यहाँ 10 कलाकार आके काम कर रहे हैं IIT दिल्ली में, और यहाँ पे जो हम लोग को बुलाया गया है काम करने का, जो यहाँ पे हमें जो माहौल दिया गया है बहुत ही अच्छा है, सराहनीय है। और जो मैंने अभी यहाँ काम किया है ये नेचर को लेकर के किया है। जो इंसेक्ट्स होते हैं या जो भी हमारे वातावरण में जो भी कीड़े मकोड़े होते हैं, फ्रॉग होता है, तो फ्रॉग और मैंने कुछ इंसेक्ट्स को लेके काम किया है। और जैसे खस होती है उसमें जो लताएं होती हैं वो लताएं मैंने दिखाया है नेचर को लेकर के। और यहाँ पे मैंने कुछ फ्रॉग बनाए हैं। वो फ्रॉग यहाँ मिट्टी से कुछ न कुछ कीड़े बैक्टीरिया ले रहे हैं और खा रहे हैं उन्हें अपना जीवन यापन करने के लिए। वैसे इंसेक्ट्स कुछ फ्लावर और कुछ लीव्स से जो उनको खाने को जो पदार्थ मिलता है वो उसको ले रहे हैं। तो ये जीवन चक्र है वो दिखा रहे हैं, और ये सारा चीज़ हमारा नेचर से ही रिलेटेड है। थैंक यू सो मच। मेरा नाम निकुंज बिहार दास, मैं उड़ीसा का मैं एक कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ। आर्ट सबके लिए इसलिए ज़रूरी है कि आर्ट नहीं होगा तो ये संसार नहीं रहेगा। तो आर्ट सबसे पहले आर्ट है, उसका बाद लैंग्वेज आया है। तो जब शुरू से आर्ट का ऊपर बेस करके हमारा सोसाइटी बना है तो आर्ट क्यों ज़रूरी है। इसलिए मेरा सजेशन है कि हर जगह में आर्ट को इम्पोर्टेंस देना चाहिए। मेरा नाम आनंद महादेव बेकवाड़ है, मैं बेलगाम से हूँ। अभी रहता हूँ पुणे में, मेरा स्टूडियो वहीं है। और मैं अभी फ़िलहाल लैंडस्केप फ्लोरल एब्स्ट्रैक्ट करता हूँ। बट अभी 3 साल हो गया मेरा एक बनारस के ऊपर सीरीज चल रहा है, उसके ऊपर ही काम कर रहा हूँ मैं अभी 3 साल से। अभी नेक्स्ट मेरा शो है शायद दिल्ली में सोलो होने वाला है। आपको ज़रूर बोलूँगा सबको आ जाइए प्लीज़। हेलो, मेरा नाम सुनील कुमार है और मैं आगरा से हूँ। और बेसिकली ये जो आर्टिस्ट कैंप हो रहा है इसमें हमें एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है, एक दूसरे को का काम देखने को मिलता है। और जैसे डिफरेंट जोन से आर्टिस्ट होते हैं और उनकी स्टाइल अलग होती है काम करने की, तो अलग अलग स्टाइल के एक तो काम देखने को मिलता है। और अलग अलग जोन से हैं तो उनके बारे में जानना और उनके काम के बारे में जानना, और बहुत कुछ हमें उनके काम से सीखने को मिलता है। और सब लोग एक दूसरे से सीखते हैं। तो ये कैंप इस तरह की जो ऑर्गेनाइज होते हैं कैंप या वर्कशॉप जो भी है, तो उसमें मुझे लगता है कि सभी को अगर पार्टिसिपेंट हैं तो बेहतर है, अगर पार्टिसिपेंट नहीं है तो उनको विजिट ज़रूर करना चाहिए। जैसे मेरा नाम निकेश तिवारी है, मैं बेसिकली बनारस में हूँ पर फिलहाल मैं आगरा में स्टेबल हूँ। और मैं एक आर्टिस्ट हूँ और यहाँ आने के बाद जैसे हमारे कुछ बहुत सारे मित्र हैं, जहाँ जो 10 आर्टिस्टों का ग्रुप है, सारे मित्र हैं। पर आने के बाद एक एनर्जी से फील होती है, क्योंकि आर्ट ना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अगर आर्ट नहीं है तो आप ज़ीरो हो, क्योंकि बिना आर्ट आपकी लाइफ
ग्रोथ नहीं करेगी, क्योंकि आर्ट लाइफ में हर एक एंगल पे है। आर्ट पेंटिंग ही नहीं है, आर्ट एवरीथिंग है। जो आप कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हो वो आपके जीवन की एक कला है, तो इसको जारी रखिए, जीवन के लिए बहुत जरूरी है। I always say to the younger generation, you have a chance. We can run, we can establish this gap. Samsa sab together. मेरे लिए शॉर्ट बहुत काफ़ी है। वो उसको समझा रही है, आर्टिस्ट को समझा रही है। मेरा नाम विनोद पटेल है। ऐसे तो मैं आर्टिस्ट भी हूँ और गुजरात से हूँ, और इसमें अहमदाबाद में फ्रीलांस वर्क भी करता हूँ और एक स्कूल में आर्ट टीचर भी हूँ। जिस तरह से मैं देखता हूँ कि आर्ट में अवेयरनेस की जो बातें होती है उसके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ। पहले तो मैं ये बता देता हूँ कि IITD ने जो जिस तरह से हमको इनवाइट किया है नेशनल लेवल पे, तो उसमें 10 आर्टिस्ट को बुलाए गए। बहुत स्किल वाले आर्टिस्ट जो थे उनके पास बहुत बड़ी स्किल थी, और उसमें सबने मतलब स्लाइड शो किया, डॉक्यूमेंट्री बताई, मैंने भी खुद स्लाइड शो किया, बच्चों में हम लोगों ने बांटा। तो जिस तरह से एक माहौल बना जोड़ने का और स्टूडेंट्स को मतलब बांटने का, ये हमारे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो जिस तरह से हम देखते हैं कि आर्ट करने से पहले आर्ट का डिसिप्लिन क्या होना चाहिए। आर्ट के लिए एक डेप्थ होती है, तो डेप्थ में जाना है, एक बचपना होना चाहिए। जो लोग बड़े हो जाते हैं उनकी बात अलग है, मैं बड़े लोगों की बात नहीं करना चाहता हूँ, मगर मैं बचपने के साथ बात करना चाहता हूँ। मैं जिस तरह से मेरी जर्नी है, आज मैं 45 ईयर्स से मैं ये काम कर रहा हूँ बच्चों के साथ, तो मैं बच्चों को क्या देता हूँ स्कूल में, उनको स्लाइड शो, डॉक्यूमेंट्री, मतलब एक अमुक स्पर्धा रहती है, मतलब अलग अलग एक एक्सपेरिमेंट करवाता हूँ, और उनके दिल को मैं समझ सकता हूँ पहले।
उनको क्या चाहिए। मतलब कभी कभी कोई बच्चे में बहुत अच्छी स्किल हो, मगर उसके पास बैठ के थोड़ी सी बातें करो आर्ट की, कुछ उनको शेयर करो और कुछ उनको बताओ क्या आर्ट में इतनी डेप्थ होती है। वो आर्ट हर जगह पे काम लगती है, चाहे वो आर्किटेक्चर हो, फैशन डिजाइनर हो, या प्रोडक्ट डिजाइनर हो, या विजुअल कम्युनिकेशन हो। कोई भी फील्ड में बच्चे को जाना है तो आर्ट बहुत ज़रूरी है। तो मैं पहले तो थैंक्स फॉर IITD और उन जिसने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, और उसमें जो अनूप रतन जी ने बहुत, और वो मैम थी, उन्होंने भी अच्छा सुंदर काम किया, और बच्चों ने जो भी हमको सपोर्ट दिया, और जो कैंपस का माहौल इतना पीसफुल है जहाँ अपने आप एनर्जी आ जाती है, जैसे कुछ करने का मन करे। मैं सुबह 5 बजे 6 बजे जाग जाता था, फिर मैं काम करता था, तो मुझे थकान नहीं लगती थी। ऐसा एटमॉस्फेयर है। उसी एटमॉस्फेयर में हमने बहुत सारा काम किया, और बहुत सारे एक्सपीरियंस हुए, और बहुत सारे बच्चों को मिले, हम उनकी बातें सुनी, और बच्चे में क्या डेप्थ होती है। कोई अच्छा फोटोग्राफ दिखाता है, कोई मतलब एक इंस्टॉलेशन करके दिखाता है, कोई पेंटिंग करके दिखा रहा है, कोई ड्राइंग करके दिखा रहा है। तो जो स्किल अपने आप अंदर से जो निकली हुई है ना, वो चीज़ हमको देखने को मिली। शायद मैं तो भाग्यशाली हूँ कि भी हमको IITD ने इनवाइट किया, और थैंक्स फॉर IITD एंड स्टाफ, जिस तरह से उन्होंने जो प्रोग्राम मैनेज किया, और जिस तरह से इन लोगों ने हमारे लिए हमारा सब ख्याल रखा, और जिस तरह से मटेरियल सब चीज़ें पर उन्होंने फोकस किया था, तो कोई गलती ना हो। ये दिस इज़ द फर्स्ट एक्सपीरियंस। मैं बोलता हूँ कि ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था इंडिया लेवल पे, तो दैट्स ग्रेट। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि आर्ट करने से आदमी जिंदा रह सकता है, और माइंड को फ्रेश कर सकता है। इसलिए कभी कभी मैं सोचता हूँ कि आर्ट राइट माइंड को एक्टिव करता है, और उसको एक मन को जागरूक करता है। तो मैं सोचता हूँ कि ये मेरा अनुभव है कि मैंने जो बच्चों में जो बांटा है, ये शायद किसी को काम लगेगा। थैंक्स फॉर ऑल एंड स्टाफ एंड फैकल्टीज एंड ऑल मेंबर्स। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। इन लोगों को प्लानिंग नहीं है, कॉलेज वालों को प्लानिंग में क्या, बस सिर्फ दिखावा करा, दिया जलाया, गेस्ट बन गए और बड़े हो गए। बस अलग दिए से बड़े नहीं होना है यार। अपने को देख के कोई किसी का दिया जल जाए ना, ऐसा